अपना व्यक्तिगत जीवन में प्रभु आपसे क्या बात किया है, क्या बात कर रहे हैं, इसके बारे में आप लोग भी शेयर कर सकते हैं। मैं पहले थोड़ा शेयर करेंगे। तो सिस्टर सोनाली इज ऑन द लाइन। Yes, brother. या सो वी टर्न टू एक्ट्स चैप्टर 26। और हम जाएंगे प्रेरितों के काम 26 अध्याय। So this is what the Apostle Paul's testimony was that, and what message he received from the Lord. और ये प्रेरित पौलुस की गवाही है और वो संदेश जो यीशु मसीह के द्वारा उनको मिला है। And verse 17 onwards we'll read 17, 18, 19, 20. 20. 17 से 20 वचन तक। Was delivering you from the Jewish people and from the Gentiles to whom I am sending you, to open their eyes so that they may turn from the darkness to light and from the dominion of Satan to God, in order that they may receive forgiveness of sins and inheritance among those who have been sanctified by faith in me. Consequently, King Agrippa, I did not prove disobedient to the heavenly vision, but I kept declaring both to those of Damascus first and also at Jerusalem, and then throughout all the regions of Judea and even to the Gentiles, that they should repent and turn to God, performing deeds appropriate to repentance. For this, okay. 17 से 20 वचन तक। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोले, कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। तो हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली, परंतु पहले दमिश्क के और फिर यरूशलेम में रहने वालों की को तब यहूदियों के सारे देश में और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की और मन फिराव करके योग्य काम करो। Amen. So the Apostle Paul had received a message from the Lord Jesus Christ. और प्रेरित पौलुस को यह संदेश प्रभु यीशु मसीह की ओर से मिला था। And he had to go and declare the word of God to them. और ये जो परमेश्वर का वचन था, ये वहां जाकर घोषणा करनी थी तो पौलुस को। So verse 18 says, so that the eyes would be opened. प्रेरित पौलुस यहाँ कह रहे हैं कि तू उनकी आंखें खोले, so that they may turn from darkness to light. कि वे अंधकार से ज्योति की ओर जाएं। Now we have physical eyes and also we have spiritual eyes. हमारी भौतिक आंखें हैं और हमारी आत्मिक आंखें भी है। We who have born again know there are spiritual eyes that we can see things which unbelievers cannot see. और हम एक विश्वासी होने के नाते एक नया जन्म पाया है हमने, इसलिए हमारे पास एक आत्मिक आशीष है, आंखें हैं जो दूसरे नहीं देख सकते, वो हम देख सकते हैं। We know that there is a heaven, there is a hell. और हम जानते हैं कि एक स्वर्ग है और एक नरक भी है। We know that there is a devil and there is Jesus Christ is the Son of God. और हम जानते हैं कि शैतान है, और हम ये भी जानते हैं कि यीशु मसीह जो है परमेश्वर का पुत्र है। And we know the way of salvation. और हम उद्धार के मार्ग को भी जानते हैं। And there are so many things God has revealed people to those who have got spiritual eyes. और जो प्रभु के लिए बुलाए गए हैं, जो उद्धार पाए गए हैं, प्रभु ने बहुत सारी बातें उन पर प्रकट की है। So whenever the gospel or the word of God is spoken and preached, then people's eyes get opened. और जब भी सुसमाचार सुनाया जाता है, प्रभु का वचन बांटा जाता है, तो लोगों की आंखें खुल जाती है। Earlier, before that, the eyes are closed. और पहले जो थी उनकी आंखें बंद थी, That is, they are sleeping. जैसे कि वो सो रहे हो। When people are sleeping, they don't know what is happening around them. और जब लोग सो रहे होते हैं तो ये नहीं पता होता है कि उनके आसपास क्या हो रहा है। But when the word of God is given, their spiritual eyes get opened, and suddenly they see, these are the important things. There is a heaven, hell, there is judgment to come. और जब प्रभु का वचन सुनाया जाता है तो उनकी आंखें खुलती है, और फिर वो देख पाते हैं कि अच्छा, ये है स्वर्ग और नरक, और ये है यीशु मसीह। Then they can have a spiritual understanding. और फिर उनकी आत्मिक समझ खुल जाती है। Then they can take the decision what they should do with their lives and all the different decisions in their own life.
और फिर वो निर्णय लेते हैं कि उनको अपने जीवन के साथ क्या करना है, कैसे अपने जीवन के निर्णयों को लेना है। So then they can turn from the darkness that is in all the wrong things that they were doing when they are not aware of it. और फिर वो अंधकार से फिर जाते हैं, इसका मतलब ये कि वे जो गलत करते रहते हैं उससे फिर जाते हैं। So there are so many of us, we are all living in darkness, doing all sorts of sins, and we were continuing to do it. और जब हम पहले थे तो हम अंधकार में जी रहे थे, हम जो है पापों को करते ही जा रहे थे। And we know that, and we come to know also that we were under the control of the devil. और हमें फिर पता चला कि हम तो शैतान के नियंत्रण में हैं। We are under so many bad habits, and we were under addicted to so many bad habits and sins. और हमें कितनी गंदी आदतें थी, हम कितने ज़्यादा उस गंदी आदतों में जकड़े हुए थे। We are used to talking such a lot and gossiping, backbiting. हम बहुत सारी बातें करते थे, पीठ पीछे बातें करना, चुगली करना, And there were a lot of unforgiving and hatred in our heart. ना माफ करने वाला आत्मा हमारे अंदर था और बहुत सारा कड़वाहट, गुस्सा। And there was so much desire for the earthly things, for food, for clothes, and to impress other people. And to live संसार that life we were addicted to. और संसार में कितनी सारी लुभावनी बातें हमें प्रलोभित करती थी, कितनी सारी बातें हमें अच्छी लगती थी, जैसे कि खाना और अच्छे कपड़े, पैसा। And we were so addicted to all the entertainment in the TV, the movies, and the YouTube. And so we could not get out of it. और हम बहुत सारी यूट्यूब और बहुत सारी फ़िल्में और टीवी देखने के लिए बहुत ज़्यादा हम अ, व्यसन में रहते थे। So the Lord Jesus Christ has given us light, saying that this is wrong. Then we can turn, it says, from the dominion of Satan to God. ब्रदर बस It says we were living under the dominion of Satan, and now we can turn to God. ओके, ओके। और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर यहाँ पर लिखा है कि हम शैतान के अधिकार में थे और अब बोल रहे हैं कि परमेश्वर की ओर फिरें। There are only two authorities, that is either the devil or God. और 2 ही अधिकार है, या तो हम शैतान के अधिकार में रहें, नियंत्रण में रहें या फिर प्रभु के। The whole world is under the power of the devil. और पूरा जो संसार है वो शैतान के नियंत्रण में है। But now God has given us the light, the word of God, to show us the way of salvation. We can turn to God and God can forgive our sins and we can become children of God. प्रभु ने अब हमें ज्योति दी है, हम प्रभु की ओर फिर सकते हैं, प्रभु के बच्चे और संतान हो सकते हैं। And then he says, then what happens to us in verse 18? That we receive forgiveness of our sins. और फिर क्या होगा हमारे पास, जो हमारे साथ जो 18 वचन में लिखा है कि हमें पापों की क्षमा मिलेगी। All our sins, God forgives us because we ask Jesus, we trust in the sacrifice of Jesus, that he died for my sin, and we can confess our sin to God and God forgives our sins completely. हमारे सारे पापों को प्रभु पूरी तरीके से माफ करेंगे, क्योंकि हम प्रभु के पास जाएंगे, अंगीकार करेंगे अपने पापों का और प्रभु हमें माफ कर देंगे। And it also says that we are also, in addition to forgiveness of sins, we also receive the inheritance among those who have been sanctified by faith in me. और यहाँ पर लिखा है कि हम उन लोगों के साथ जो प्रभु पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं, वो मिरास भी पाएंगे। So we then become the family of God and we get an inheritance from God which we did not have. और हम प्रभु के जो परिवार में हम शामिल हो जाएंगे, जो हमारे पास था ही नहीं। So our inheritance will last for all eternity. All the silver, gold, God's treasures belongs to us also. और हमारी जो मिरास है वो तो प्रभु के साथ है। सारा जो सोना है, चांदी है, वो उससे बढ़कर है परमेश्वर के साथ। And all the love of God and the fellowship of the saints, they also belong to us. और sorry brother, please repeat. All the love of God and all the saints and all the true believers, they also are our own family. और हम जो सच्चे विश्वासी हैं, परमेश्वर जो है, सारे जो संत है, वे भी हमारे परिवार में शामिल है। So this happens when we turn from darkness to light. और इसका मतलब है कि हम अंधकार से ज्योति की ओर फिर गए हैं। When we were in darkness, living in our own sin and bad habits, we had no fellowship with God and we were living in sin and we were living a very miserable life. और जब हम अंधकार में थे तो कोई प्रभु का प्रकाश नहीं था, हम बहुत ही बदतर से बदतर जीवन जी रहे थे। So that is why the Apostle Paul said, because of this, verse 19, King Agrippa, he said, I did not prove
disobedient to the heavenly vision. और वो जो प्रेरित पौलुस है वो राजा अग्रिप्पा को कह रहे हैं कि मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात को नहीं टाला है। So, my dear brothers, sisters, see, we can either be obedient to the heavenly vision or disobedient. और हमें ये देखना है कि क्या हम आज्ञाकारी हैं जो हमें स्वर्गीय बातें बताई जा रही है उनके या अनाज्ञाकारिता में है। God has shown us our future and God has helped us so much, and now we have to obey God. और प्रभु ने हमारा जो है जो हमारे साथ होने वाला है वो बताया है, हमें प्रभु के लिए आज्ञाकारी होना है। There are so many believers who become disobedient to God. बहुत सारे विश्वासी जो है अनाज्ञाकारी हैं प्रभु के लिए, They still run after the things of this world and then they again go under the power of the devil. और वो अभी तक संसार की ओर जा रहे हैं और संसार के पीछे भाग रहे हैं और इस शैतान के नियंत्रण में आ गए हैं। Colossians chapter 3 verse 2 says, set your affections on things above and not on the things of this earth. कुलोसियों के पत्र में लिखा है कि हमें पृथ्वी पर की नहीं स्वर्गीय बातों पर मन लगाना है। If we keep our love for the things of this world, then we go back again into the devil's hands because the devil is controlling all those things. और यदि हम संसार में मन लगाएं तो हम फिर से उसी पापों में चले जाएंगे उस शैतान के हाथों में, क्योंकि शैतान का नियंत्रण है इस बातों पर। There are so many believers who do not want to listen to the word of God, and they live like worldly people and have the same ambition as worldly people. और कई विश्वासी जो हैं वो इन बातों को सुनना नहीं चाहते हैं, प्रभु के वचन को सुनना नहीं चाहते हैं, इसलिए उनका मन जो है पूरा संसार में चला जाता है। So God has given us a heavenly vision, and we must be obedient to the word of God. प्रभु ने हमें स्वर्गीय दर्शन दिया है, इसलिए हमें बहुत ही ज्यादा आज्ञाकारी रहना है। So that it says, verse 20 says towards the latter part that they should repent and turn to God, performing deeds appropriate to repentance. और यहाँ पर 20 वचन में लिखा है कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिर कर मन फिराओ के योग्य काम करो। So all the things which God speaks to us, a lot of change has to take place in each one of our lives. और जो कुछ भी प्रभु हमसे बात करते हैं तो कई सारा बदलाव हमारे जीवन में आ जाएगा। Repentance means change of mind and change of behavior. और मन फिराव का मतलब ये होता है कि हमारा मन बदले, हमारा बर्ताव भी बदले। God shows us our sin, He forgives our sin and tells us not to go back into the same habits again. प्रभु ने हमारे पापों को क्षमा किया है और फिर कहते हैं कि उस पापों में दोबारा मत जाना। Forgive other people and go and reconcile and make peace with everybody. और सभी को माफ करो और आपस में प्रेम रखो और सबके साथ अच्छे से रहो। If you are in debt and taken things of other people, go and return it back. और यदि किसी से तुमने उधार लिया हो, पैसा लिया हो, तो उसको तुरंत वापस करो। If you are backbitten and gossiped about it, ask God forgiveness and ask other people forgiveness. यदि तुमने किसी की पीठ पीछे बातें की हो, यदि चुगली की हो, तो तुरंत जाकर उससे माफी भी मांगो। And this is how the Holy Spirit speaks to us in different areas of our life once we come back to the Lord. और अलग-अलग क्षेत्रों में इस तरीके से पवित्र आत्मा हमसे बात करता है जब एक बार हम प्रभु के पास आ जाते हैं। So when we come to the Lord, we receive light from Jesus Christ. और जब हम प्रभु के पास आते हैं तो हमें प्रभु की ओर से एक ज्योति मिलती है। And this light has to increase. और ये इस ज्योति को बढ़ते जाना चाहिए। And in our lives, if it is not increasing, it will decrease. और यदि वो बढ़ नहीं रही है तो फिर कम हो रही है। That is why many believers backslide, because they were not listening, wanting to love the light. और ये ऐसा ही होता है, कई विश्वासी जो हैं वो नफरत करते हैं, इसलिए उनके जीवन में जो उजाला है वो घटता जाता है। But God shows us wrong things in our life, we do not like it. यदि प्रभु बताए कुछ गलत चीज हमारे जीवन में तो हम पसंद नहीं करते। But we have to acknowledge the word of God and say, yes, Lord, I am wrong, I want to change. पर हमें मान लेना है और कहना है कि हाँ प्रभु मैं गलत था और मुझे बदलना है। Then it goes better and better with us. तो फिर ये बेहतर और बेहतर होता जाएगा हमारे साथ। We see in the book of Proverbs, chapter 4, verse 18. नीति वचन 4:18 वचन देखेंगे। But the path of the righteous is like the light of dawn that shines brighter and brighter until the full day. परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। So you and I are righteous people in the sight of God. और हम प्रभु की नजरों में एक धर्मी व्यक्ति हैं।
not because of our good works, but because we have trusted in Jesus Christ and believed that He died for our sins. इसलिए नहीं कि क्योंकि हमने बहुत अच्छे काम किए हैं, पर इसीलिए कि हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है इस पर कि वो हमारे पापों के लिए मरा है। So the beginning of our life is like the light of dawn. और हमारी जो जीवन की शुरुआत है वो प्रभु की ज्योति के साथ होती है। The light of dawn means when the Suryoday hota hai na, that is the light. हमारा Light जो is a जीवन very की dim light. शुरुआत वो सूर्योदय के साथ होती है। So that the sun becomes brighter and brighter as the noonday comes. और जैसे ही दोपहर होती जाती है वैसे ही सूरज और चमकता जाता है। So our light also should shine brighter and brighter till the noonday sun, like the और noonday sun. उसी समान हमारा भी जो उजाला है वो और अधिक बढ़ता जाना चाहिए, जैसे कि दोपहर में जो सूरज है वैसे चमकता है उसी प्रकार। So more of the word of God, more of the love of God, more of hatred to sin comes into our own lives. और जैसे कि और जो हमारे जीवन में जो कड़वाहट है, गुस्सा है, नफरत है, वो जाते रहना चाहिए। And the love of God and the light of God will come more and more in our lives. जो प्रभु का प्रेम है, प्रभु की ज्योति है, वो बढ़ती जानी चाहिए। Till the last day of our life, it should come brighter and brighter. और हमारे जीवन की आखिरी सांस तक वो और बढ़ती जानी चाहिए। So that is what God expects from all of us. और यही प्रभु अपेक्षा रखते हैं हमसे और आपसे भी। And that comes when we keep on obeying God in whatever God tells us. और ऐसे कैसे जब होगा जब हम प्रभु की आज्ञा को मानेंगे, जो कुछ प्रभु कहते हैं हम मानेंगे। If we love the world, the love of God will not come into our life. यदि हम संसार से प्रेम रखें तो परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर नहीं होगा। If we love our pride and all the worldly things and all these desires that are there in our own life, and we are running after those things, then the love of God becomes less and less. और यदि हम घमंड करें और अपने घमंड से प्रेम रखें, इस संसार की बातों से प्रेम रखें, तो परमेश्वर का प्रेम कम और कम होता जाएगा। That we have seen also in our own lives, when we start loving the things of this world and our pride and ego and selfish life and love all worldly things, then the desire for God keeps on going away from our life. और हमने हमारे जीवन में हमेशा देखा है कि जब संसार हमारे जीवन में आ जाता है या फिर गुस्सा, घमंड और स्वार्थीपन हमारे जब जीवन में आ जाता है, तो प्रभु की ओर हमारा रिझाव कम हो जाता है। So that is what happening to most believers in many churches. Their love has become dim and become cold. और ऐसे ही होता है कई कलीसियाओं में विश्वासियों के साथ, जब वे संसार में भटक जाते हैं तब उनका जो प्रेम है प्रभु की ओर वो कम होता जाता है, वो ठंडे पड़ जाते हैं। In many believers, even CFC also, the love of God has become cold because they are only thinking about earthly things and what they can get from God. कई विश्वासियों के साथ, यहाँ तक कि CFC में भी प्रभु का जो प्रेम है उनके जीवन में बहुत ठंडा हो जाता है। But God wants us our light to shine brighter and brighter. तो प्रभु चाहते हैं कि ये तो और चमकता जाना चाहिए। Light shining brighter and brighter means that our love for God and the obedience to God increases more and more in our life. और प्रभु का प्रकाश और चमकने का मतलब ये है कि प्रभु का प्रेम और आज्ञाकारिता और बढ़ती जानी चाहिए। Whatever God tells me, immediately obey. जो कुछ भी प्रभु कहते हैं उसको तुरंत मानिए Or try to obey. और मानने की कोशिश करिए। Ask God's help, Lord, I want to obey you, Lord. और प्रभु से मांगिए कि प्रभु मैं आपकी आज्ञा को मानना चाहता हूँ। The word of God is there like a light to our path and a light to our feet and a light to our path. और परमेश्वर का जो वचन है हमारे पाँव की ज्योति और मार्ग के लिए उजियाला है। Psalm 119 verse 105, it says that first of all it shows how we are walking every day. और सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम कैसे चल रहे हैं हमारे रोज के जीवन में। If we have spoken a rude word or angry word, the Holy Spirit will tell us this is not the right way to speak. You are doing a sin by getting angry. और यदि हम बहुत ही गुस्से वाले शब्द बोल रहे हैं या बहुत गलत तरीके से बात कर रहे हैं, तो पवित्र आत्मा हम बताएंगे कि ये सब ठीक करो। If you are telling a lie or speak or something else or any other thing or lusting with the eyes for earthly things, then the Holy Spirit will speak to us. और यदि हम झूठ बोल रहे हैं या फिर हम प्रलोभित हो रहे हैं, संसार की चीजों में हमारा मन लग रहा है, तो फिर पवित्र आत्मा हमें बताएंगे कि आप अब सही मार्ग पर नहीं हो। So many times we come into difficulties and problems in our life, and the Holy Spirit speaks to us and tells us what is wrong in our own life.
और कई बार हम गलत रास्ते पर होते हैं, हम नहीं ले अपना गलत निर्णय को ले लेते हैं, तो पवित्र आत्मा हमें बताते हैं कि क्या करना चाहिए। Sometimes we have problems, sometimes we have sicknesses. The Holy Spirit will speak to us. और बहुत सारी कभी मुसीबतें होती है, कभी-कभी बहुत बारी सारी बीमारियाँ हो जाती है, तो पवित्र आत्मा उस वक़्त हमसे बात करते हैं, So that we can change. ताकि हम बदल सकें। So we can change and become like Jesus Christ and lose all our wrong things and all the sinful things that we are doing and bad habits. और हम बदल सके ताकि हम यीशु मसीह के समान हो जाए, ताकि जो कुछ हम गलत कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, वो हमारे जीवन से हम छोड़ दें। So the choice is up to us. God doesn't force us. और ये सब हम पर निर्भर करता है और किसी पर नहीं। So that is why some believers progress and some believers don't progress at all, or they become worse. इसलिए जो कुछ विश्वासी जो हैं वो उन्नति करते हैं और कुछ विश्वासी उन्नति नहीं कर पाते हैं। So that is when we walk in the light as He is in the light, then we have fellowship with God. और इसलिए हमें प्रभु की ज्योति में चलना है, प्रभु के साथ संगति रखनी है। In 1 John chapter 1, पहला यूहन्ना पहला अध्याय verse 5 and 5वां 6. वचन 5, 6, 7. 5 से 6 वचन तक। 5, 6, 7, 7. This is the message that we have heard in Him and announced to you, that God is light, and in Him there is no darkness at all. If we say that we have fellowship with Him and yet walk in darkness, we lie and do not practice the truth. But if we walk in the light as He Himself is the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. 5 से लेकर 7 वचन तक, जो सुसमाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि हम उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें हर एक पाप से शुद्ध करता है। So all of us can walk in the light as God shows us, and then the wrong things in our life, we can clear it out, and God shows us that we are not loving other people. That is also darkness. We can come to the light. और जब भी हम कोई अंधकार में चलते हैं या फिर किसी से प्रेम नहीं रख पाते या फिर कोई बुरी बात हमारे जीवन में होती है, तो हम प्रभु के साथ सहभागिता रख के उसको ठीक कर सकते हैं। So when we pray to God, read the word of God, and sometimes through many troubles and trials that come in our life, God speaks to us. और जब भी हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं और बहुत सारी मुसीबतें, दुख, तकलीफें आती हैं, तो हम प्रभु से बात करते हैं, तो प्रभु हमसे बात करते हैं। And the word of God will come very clearly to say that these things, what you are doing is wrong. और बहुत ही स्पष्ट रूप से प्रभु का वचन हमारे पास आता है और कहता है कि ये जो तुम बातें कर रहे हो वो गलत है। So then what we should do, so verse 9 says, if we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. और हमें क्या करना है, जैसे कि 9 वचन कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले, तो हमारे हर पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। So each one of us should confess our sin to God and acknowledge our sin to God. और हम में से हर एक जन को अपने पाप का अंगीकार करना है प्रभु के सामने और मान भी लेना है। Don't blame your husband or children or your boss or anybody else. Blame yourself. Don't find the faults of other people. You have to find our own faults. और किसी और में खामियां मत ढूंढिए, अपने पति में, बच्चों में, अपने बॉस में, अपने आप में ढूंढिए खामियों को। And if we say that we have done nothing wrong, the Bible says we are only deceiving ourselves. और यदि हम प्रभु का वचन कहता है, यदि हम कहें कि हम बिल्कुल सही है, तो हम झूठे हैं। Most believers, unbelievers in the world, they feel that nothing much is wrong with them. और कई बार जो अविश्वासी है और विश्वासी भी ये कहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ मैं कर रहा हूँ, वो कुछ भी गलत नहीं है। Because they are walking in darkness and they don't know what they are doing. क्योंकि वे अंधकार में चल रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। When we are walking in the light, we see all the wrong things in our own life. और जब हम ज्योति में चलेंगे, तो हमें सारी चीजें हमारे जीवन में जो घट रही है, वो सब दिखाई देगी। And the Holy Spirit wants to purify us. और प्रभु want to change us and clean us. और प्रभु का जो लहू है वो हमें शुद्ध करने के लिए है।
He wants to change our bad habits and all our sins and make us pure. और हमारी सारी गंदी आदतों को, पाप को मिटाने के लिए, हमें बदलने के लिए, शुद्ध करने के लिए, so that we can walk with him and talk with him and enjoy his presence. ताकि हम उसके के साथ चल सके, उसके साथ बात कर सके, उसके साथ आनंद ले सके अपने जीवन का। So that is the most important thing. God desires to have fellowship with you and me. और ये सबसे ज्यादा जो है महत्वपूर्ण है, जो प्रभु चाहते हैं हमारे साथ सहभागिता रखना, वो इसी कारण है। God is not interested in just our ministry and service that we do for him, but he is interested in our spiritual fellowship with him. प्रभु बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखते हैं जो सेवकाई हम उसकी करते हैं, पर प्रभु के साथ जो संगति हम रखते हैं उसमें प्रभु की दिलचस्पी है। So when we want to be friends with the Lord, we can walk with him and tell him all our troubles and problems, and we can thank him that he is there with us. और यदि हम प्रभु के मित्र होना चाहें तो हमें क्या करना है कि प्रभु के साथ आज्ञाकारिता में रहना है, प्रभु की बातों को सुनना है और प्रभु के साथ एक अच्छा जीवन बिताना है। So we must not be just believers only by name. तो हमें सिर्फ नाम का एक विश्वासी नहीं बनकर रह जाना है। Yes, Lord, every day I want to walk with you. हाँ प्रभु, रोज मुझे आपके साथ चलना है। And then the more we walk with him, the closer the Lord will speak to us, and we will enjoy fellowship with him, and our inheritance in God also will increase. और जितने करीब से हम प्रभु के साथ चलेंगे और उतनी ही ज्यादा ज्योति हमारे जीवन में बढ़ती जाएगी, प्रभु के साथ और गहरे हमारा संबंध होता जाएगा। And then our fellowship with God and with godly people will become better and better. और प्रभु के साथ संगति और हमारे साथी भाइयों बहनों के साथ संगति और बेहतर होती जाएगी। And then we will see that all the worldly things and all the bad habits that we left behind were so evil, and we'll thank God that God, how much you have saved me from all these things. और जब हम देखेंगे पीछे मुड़कर कि कितनी बुरी हालत में थे हम लोग, कितने पाप में थे, तब हम कहेंगे कि प्रभु आपने मुझे कितनी दुष्टता से बचाया है। So there are so many things wrong in our lives even today. और आज तक भी हमारे जीवन में कई गलत बातें हैं। The Holy Spirit is slowly working in each one of our lives. धीरे धीरे पवित्र आत्मा हमारे हर एक के जीवन में कार्य कर रहे हैं। But we have to cooperate with God. पर हमें प्रभु के साथ सहभागिता रखनी है, उसके साथ काम करना He है। will change us. फिर वो प्रभु प्रभु हमें बदलेंगे। If we don't cooperate with God, we'll again go back in darkness. यदि हम सहभागिता ना रखें तो फिर से हम अंधकार में चले जाएंगे। And then we'll start grumbling and murmuring and complaining about everything else. फिर हम कुड़कुड़ाने लगेंगे, बड़बड़ाने, शिकायतें करने लग जाएंगे। And all our bad habits will come back. और सारी जो गंदी आदतें थी, पाप थी, वो वापस आ जाएगा। But if we obey God, then God will fill us with the Holy Spirit. और यदि हम आज्ञा माने तो प्रभु हमें पवित्र आत्मा से भर देंगे। Then in all our trials and problems in life, and every day we will be worshiping God and praising God. हर एक प्रलोभन में, हर एक मुसीबत में हमें प्रभु की स्तुति, महिमा और धन्यवाद करना है। And the presence of God will be very close to us in our lives and in our family also. प्रभु की संगति हमारे जीवन में बहुत करीब से रहेगी और हमारे परिवार के जीवन में भी। So my dear brothers, dear sisters, let us always walk in the light. इसलिए प्रिय बहनों, हमेशा ज्योति में चलो। Let us not go back to darkness again. कभी भी उस अंधकार में वापस लौट कर मत जाना। And when we go back to darkness again, God punishes us. और यदि हम उस अंधकार में वापस लौट गए तो प्रभु हमें सजा देंगे। So that we can at least come to our senses and turn back. ताकि हम कम से कम पछता कर ही वापस आ जाए। No, David was a man after God's own heart. जो दाऊद था वो प्रभु के मन के अनुसार एक व्यक्ति था। He wrote so many beautiful psalms and songs and worshipped and praised God from his heart. कितने सारे भजन उसने लिखे हैं प्रभु के लिए, अपने हृदय से उसने धन्यवाद और महिमा की है। But when he grew old, he went and lived, did all wrong things in his life. He committed murder and he committed adultery. और जब वो बड़ा हो गया, जब वो बड़ा हो गया तो उसने बहुत सारे पापों को किया, उसने व्यभिचार भी किया और एक हत्या भी की। At that time, he did not know, because he was in darkness. He did not know that he was doing all these sins. उस समय वो नहीं जानता था, क्योंकि वो उस वक्त अंधकार में था और नहीं जानता था कि वो कितने पाप कर रहा है। And then God had to send his prophet Nathan to tell him that you are the man who has done all these sins. और प्रभु ने एक भविष्यद्वक्ता को उसके पास भेजा और उसने उसको बताया कि तुम सब गलत बातों को कर रहे हो, पाप कर रहे हो। And we have to suffer for it. और तुम्हें इसके लिए भुगतना होगा। But David repented and asked God forgiveness. तो फिर दाऊद ने पश्चाताप किया और फिर माफी मांगी। Then he came back to a fellowship with God.
और फिर वापस से प्रभु की संगति में लौट आया। Then he wrote that Psalm 63. और हमें उसने फिर वो भजन संहिता 63 को लिखा। 63, I don't know what the Psalm. Take it, I'll just tell it. 51. No, it's not 63. I think it's Psalm 51. Yeah, Psalm 51 he wrote, not 63. भजन संहिता 51। So that we also can read that Psalm 51, we'll know how deeply he repented from that sin. और हम भी इस भजन संहिता 51 को कर सकते हैं, कितनी गहराई से उसने प्रभु से माफी मांगी है। And then he was restored back to fellowship. और फिर वापस से अपनी प्रभु के साथ संगति में वापस लौट जाता है। Because he repented, he got fellowship, but there are many people who do not repent. और उसने पश्चाताप किया, इसलिए उसको प्रभु की संगति वापस मिली, पर कुछ लोग हैं पश्चाताप नहीं करते। They do wrong things and then they go out of fellowship with God, even though outwardly they have got a name that they are Christians, but inside there is no spiritual life. पश्चाताप नहीं करते, बाहरी रूप से तो दिखाई देते हैं कि विश्वासी है, पर अंदर से उनका मन प्रभु से बहुत दूर होता है। Their mind is on earthly things. मन जो है वो पृथ्वी की बातों पर लगा रहता है। And Jesus said, "My kingdom is not of this world." और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मेरा राज्य जो है संसार का नहीं है। And the kingdom of this world belongs to the devil. और जो इस संसार का राज्य है वो शैतान का है। So whatever we have got in this world, food, drink, and clothing, we are satisfied with whatever God gives us. और हमें बहुत संतुष्ट रहना है, जो कुछ भी हमें मिल रहा है, खाना, रहना, कपड़े, उसमें संतुष्ट रहना है। So, and with all the trials, one day in heaven, we will, after this life, we will enjoy tremendous blessing and peace and the great inheritance from God. और इन सब प्रलोभनों के बाद जब हम स्वर्ग में जाएंगे, तो प्रभु का आनंद हमारे साथ रहेगा, हमारे पास अद्भुत शांति होगी। Right now, we have to keep on following Jesus and be humble in heart. पर अभी हमें बहुत ही नम्र बनते रहना है, प्रभु का पीछा करते रहना है। And we must spread the kingdom of God and give the message of the gospel to everybody who is willing to listen. और प्रभु के राज्य को यहाँ पर फैलाना है, और जो कोई सुनने के इच्छुक हैं, उनको प्रभु का वचन सुनाना है। Then the Holy Spirit will guide us and lead us to the right people. और फिर प्रभु हमारी अगुवाई करेंगे उनकी और जो सही व्यक्ति है। So my dear sisters, when we walk in the light, we have the blessing of God and the presence of God with us. और इसलिए बहनों, जब हम प्रभु के साथ संगति रखेंगे तो प्रभु की शांति और प्रभु का जो उजाला है हमारे पास रहेगा। Then we can be a blessing to our family members, to our children, to our husband, and all the people around us. फिर हम आशीष का कारण बनेंगे हमारे पति के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए भी। Otherwise, the darkness will come into our life, and also we'll be a source of darkness and curse to our family. और नहीं तो फिर क्या होगा कि बहुत सारा अंधकार होगा हमारे जीवन में, हमारा परिवार भी अंधकार की ओर जाता जाएगा। And the people around us will not get the blessing of God which God has planned for us. और जो कुछ प्रभु ने योजना बनाई है वो पूरी नहीं होगी। प्रभु जो हमारे आसपास के जो लोग हैं वो भी जो है उनके लिए भी हम एक एग्जाम्पल नहीं बन पाएंगे। So my dear sisters, always walk with God and walk in the light. और इसलिए प्रिय बहनों, हमेशा ज्योति में चलो, परमेश्वर के साथ चलो। Always acknowledge your sins, forget it, and forsake the sin, and ask God forgiveness, and ask God forgiveness from other people also. हमेशा अपने पापों को मान लो, अंगीकार करो, और प्रभु के साथ उसके साथ मन फिरा लो, और दूसरों के साथ भी माफी मांगो। And set your mind on things above and not on the things of this earth. और अपने मन को पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्गीय बातों पर लगा दो। Amen. आमीन। So my dear sisters, whatever God has spoken to you, आप भी जरा शेयर कर सकते हैं बीच बीच में, थोड़े थोड़े समय में। प्रभु का वचन भी आपने प्रभु को की महिमा के लिए जीना चाहिए। आपका चाल चलन प्रभु की महिमा के लिए होना चाहिए। तो लेट अस शेयर द वर्ड ऑफ गॉड। कोई भी शुरू कर सकता है 1-2 मिनट में आपका प्रभु का धन्यवाद करके प्रभु की महिमा करानी। आमीन।
प्रभु एक की एक स्तुति हो। बोलिए। ओके। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर बहुत महान है। और मैं एक गवाही शेयर करना चाहूँगी मेरे जीवन की। और अम, मैं एक बार ऐसा है, कल शायद हाँ, कल-परसों की ही बात है। और रात में ऐसा हुआ कि करीब 2 बजे मेरी नींद खुल गई और फिर मुझे नींद आ नहीं रही थी। मैं सोच रही थी कि अरे यार, ये नींद क्यों खुल गई? अब मुझे सोना है ताकि मैं सुबह जल्दी उठ सकूँ। ऐसा करके मैं और ज़्यादा एक्सक्यूज़ेज़ अपने मतलब देती जा रही थी और बहुत देर हो गई, मुझे नींद आ ही नहीं रही थी। और उस रात मुझे 5 बजे फिर नींद आई। एक बार 2 बजे खुली तो, पर फिर क्योंकि हमने ये सीखा है कि पवित्र आत्मा हमसे बात करते हैं और हमें बताते हैं कि हमें कैसे जीवन जीना है। तो मुझे वही वैसा ही फ़ील हुआ कि मुझे ऐसा मन में आया कि और दूसरी बातें करने से अच्छा है, नींद तो आ नहीं रही, तो मुझे प्रभु का धन्यवाद करना शुरू करना चाहिए। तो मैंने स्टार्ट किया, प्रभु का धन्यवाद करने से शुरू किया कि प्रभु धन्यवाद, और अलग-अलग बातों के लिए धन्यवाद किया। फिर परमेश्वर का बहुत-बहुत धन्यवाद कि प्रभु ने एक वचन से मेरे जीवन से बात की, जो कि है पहला कुरिन्थियों 6 उसमें 20, कि तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। और इससे मैंने ये सीखा, ऐसे ऐसे मेरे मतलब ऐसा मेरे जीवन में बहुत कम होता है कि ऐसे अलग से कुछ मैं उठ ऐसे रात को उठूँ और अलग से परमेश्वर कोई वचन देकर मुझसे बात करे। तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, मेरे मन में बहुत आनंदित हूँ। और यहाँ पर ज़रूर प्रभु मुझे बता रहे हैं कि क्योंकि कुछ ऐसा है कि मैंने प्रभु के लिए अपना जीवन कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसी गलती हुई होगी मुझसे, कि क्योंकि प्रभु ने यहाँ पर बोला है कि तुम अपने नहीं हो, दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा सिर्फ़ परमेश्वर की महिमा करो। तो अब मुझे अपना समय बर्बाद नहीं करना है, मुझे अपना समय पूरा परमेश्वर को देना है। इधर-उधर कंप्लेन करने से अच्छा मुझे अपना जीवन को परमेश्वर की ओर लगाना है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। तो क्यों क्यों मेरे को ऐसा लगा कि क्यों जब मैं उठी तो प्रभु का ख़्याल मेरे जीवन रात में भी क्यों नहीं आया? सबसे पहला ख़्याल प्रभु क्यों नहीं था? बाद में क्यों आया? मुझे बहुत बुरा लगा इस बात का। पर अब मैंने सीखा है, प्रभु ने मुझे सिखाया कि अब मुझे जब भी सोते-जागते, उठते-बैठते मुझे प्रभु का ख़्याल सबसे पहले आना चाहिए, क्योंकि मुझे दाम देकर मोल लिया गया है। मुझे अपने हिसाब से जीवन को नहीं जीना है, मुझे प्रभु के लिए जीवन को जीना है। और एक और बात प्रभु ने मुझसे शेयर की, जैसे कि प्रभु ने मुझे बताई कि जैसे एक एग्ज़ाम्पल मेरे मन में आया था कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई व्यक्ति है, कोई जैसा मेरे मेरे पड़ोसी है, तो यदि कुछ ऐसा कोई सामान मुझे देकर जाते हैं, जैसे कि एक घर का सामान, जैसे कि प्रेशर कुकर मुझे देकर जाते हैं और बोलते हैं कि आप इसका ख़्याल रखना। पर मैं उसको क्या करती हूँ कि यूज़ करने लग जाती हूँ अपने ही तरीके से, और यूज़ करती हूँ और उसको हो सकता है तो जला भी देती हूँ। तो जब वो वापस आते हैं तो मैं उनको क्या दूँगी? क्या वो जला हुआ कुकर वापस दूँगी? तो क्या वो लेकर जाएँगे? वैसे ही प्रभु मुझसे बात कर रहे थे कि जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे मैंने जैसा तुमको बनाया है, वैसा ही तुमको मैं लेकर जाऊँगा। और यदि तुमने अपने हिसाब से जीवन जिया या अपनी मनमानी की या अपने जीवन को अपने तरीके से जीवन की को बनाने की कोशिश की, तो फिर प्रभु मुझे लेकर नहीं जाएँगे। तो इसलिए मुझे परमेश्वर ने मुझसे बात की कि मुझे अपने जीवन को पूरी तरीके से परमेश्वर के लिए जीना है और अपनी देह से परमेश्वर की महिमा को करना है। मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर का यहाँ पर परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की है, मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर हर एक बात में आत्मिक उन्नति में भी मुझे मदद करते हैं कि मैं आत्मिकता में बढ़ सकूँ। इसलिए परमेश्वर ने मुझसे बात की, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। आमीन। कोई सिस्टर्स है शेयर करना आपका व्यक्तिगत जीवन से प्रभु आपको क्या सिखा रहा है?
परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ आज के वचनों के लिए। बहुत प्रोत्साहन मिला आज के वचनों के द्वारा। एक वचन मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसका 7 से लेके। क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं, और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहता है वह ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। परमेश्वर की स्तुति हो इस वचनों के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है, जो हमें सिखाता है कि हमें याद दिलाता है कि हम जब इस दुनिया में आए थे तो हम कुछ लेके नहीं आए थे। इसीलिए हमें बिना मतलब की चीजों के पीछे भागना नहीं है, उसकी लालसा नहीं करना है। जब हम दुनिया में देखते हैं तो सारे लोग वही चीजों के पीछे जाते हैं जो उन्होंने कभी लाया नहीं है और ना ले जा सकते हैं। परमेश्वर के वचनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम परमेश्वर के बच्चों को बहुत स्पष्ट रूप में सच्चाई को आईने के समान दिखाता है और कहता है कि हमारा जीवन किस लिए परमेश्वर ने हमें दिया है और किस लिए हमारे जीवन को हमें जीना चाहिए इस पृथ्वी पर की। जैसे कि ब्रदर ने कहा कि हमारी आंखें हमें पृथ्वी पर की चीजों पर नहीं पर स्वर्ग पर की चीजों पे ही लगाना है, क्योंकि हम इस पृथ्वी पर जितना भी जमा करें, इकट्ठा करें या उसकी लालसा करते रहे कि वो हमें मिल जाए, तो भी वो सब कुछ नाश होने वाला है। हम उसको किधर भी नहीं ले जा सकते मरने के बाद। सिर्फ एक स्वर्गीय आशीष ही है, अनंत जीवन ही है जो हमारे लिए परमेश्वर ने वादा किया है। तो परमेश्वर के प्रति मुझे बहुत बहुत धन्यवाद ही होना चाहिए कि प्रभु ने अनंत जीवन की आशा दी है मेरे जीवन में। और 10वें वचन में जैसे कि लिखा हुआ है, विश्वासी भी इसमें गिर जाते हैं। वचन जिसको पता है, जो परमेश्वर का संतान है, पवित्र आत्मा के द्वारा स्पष्ट वचन लिखा हुआ पढ़ा भी होगा विश्वासी ने, मेरे जैसे विश्वासी, वो भी गिर जाते हैं इसमें और नाना प्रकार के दुख में पड़ जाते हैं इसमें गिरने से। तो हमें मुझे बहुत ही सतर्क रहना है, बहुत ही सावधान रहना है और परमेश्वर के वचनों को बहुत ही स्थिरता से अपने जीवन में पकड़े रहना है और प्रभु से मदद मांगती रहनी है प्रतिदिन की इन सारी बातों में ना गिरूं और प्रभु जैसा कहते हैं वचनों के द्वारा हमसे, उस प्रकार से उनके वचनों को मान कर चलूं, अपने जीवन को जी पाऊं पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा। आमीन। Other sisters also can share. Manisha sister, Jennifer sister. एक मिनट से थोड़ा शेयर कर दीजिए, जब प्रभु आपसे बात कर रहे हैं कि आप वचन से क्या कर रहे हैं व्यक्तिगत जीवन। I thank and praise the Lord for today's word has brothers shared. मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज के मैसेज के लिए जो ब्रदर ने शेयर किया। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रभु मुझे रोज सिखा रहा है मेरे लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस में, जैसे कि गुस्सा हो या इन डिफरेंट एरियाज ऑफ माय लाइफ, मैं बोल सकती हूँ कि प्रभु मुझे रोज सिखा रहा है कि कभी कभी अच्छा नहीं लगता है कि जब हमको डिसिप्लिन प्रभु से होता है, बिकॉज इट इज प्रभु हमको सिखाता है कि ये सिचुएशन में मैंने ऐसे नहीं करना चाहिए था। और कभी कभी कोई सिचुएशन में हम गलत फैसला लेते हैं और तभी हम when we do something which is not our will, okay, then we know that okay, I have not done what is please the Lord.
सो वैसे ही मेरे साथ भी इट हैपेंस होता है। और पास्ट वीक में जैसे कि मेरे साथ ऐसे एक छोटी सी इंसिडेंट मैं बोलना चाहूंगी कि मैं एक सिचुएशन था जिसमें आई वाज मतलब मुझे प्रोवोक हुई थी मैं, लेकिन फिर मुझे होली स्पिरिट ने बोला कि नहीं, मैंने नहीं बात करना चाहिए, और अभी जो तुमने बात किया वो बस हो गया, और अपने तरफ से सफाई देने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि अ, मुझे जो कहना था वो मैंने कहा। लेकिन फिर भी अगर वो सिचुएशन में जब वो सामने वाला आपको प्रोवोक कर रहा है और चाहता है कि आप कुछ बोलो, तो उससे उस सिचुएशन में बेहतर है कि मैं पीछे हट जाऊं, क्योंकि मुझे पीस मेंटेन करना है। मतलब मुझे उनके साथ कोई झगड़ा या कोई आर्ग्यूमेंट में नहीं गिरना है। तो वो टाइम पे प्रभु ने मुझे बोला कि नहीं, तुम चुपचाप रहो, और तुम जो बोला है वो हो गया, लेकिन इससे ज्यादा अभी तुम नहीं बोलना। तो फिर भी मैं जब भी घर पे आए तो मुझे ऐसे डिस्टर्ब हुआ, तो मैंने प्रभु से प्रार्थना की। मैंने बोला कि प्रभु मुझे हेल्प करो, कि और मैंने वो पर्सन के लिए प्रे किया। तभी मेरे मन में शांति आई कि प्रभु जो भी है आप सच जानते हो, क्योंकि प्रभु हमारे थॉट्स, हमारे मोटिव्स सब जानते हैं। तो अगर जब भी हमने गलत नहीं किया है, और तभी हम फेलोशिप में रह सकते हैं, तभी हम प्रभु के पास जा सकते हैं, और प्रभु हमारा प्रेयर्स आंसर करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। सिस्टर्स को धन्यवाद रहना करना चाहिए। हमको यही सोचना चाहिए, हम इस दुनिया में वी आर पिलग्रिम्स, हम लोग स्ट्रेंजर्स, हम इस दुनिया की नहीं है। कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं कि प्रभु मुझे ये चाहिए वो चाहिए। प्रभु कहते हैं मैं आपका पिताजी हूँ, मैं सब आपको दे देंगे, जो समय पे सब देंगे। तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं। जो कुछ भी प्रॉब्लम है हम प्रभु के ऊपर सौंपना चाहिए, हर चीज। उसके बाद प्रभु की शांति हमारा जीवन में राज्य करेंगे। हम तो ऐसा जिएंगे, रोज हमको जीना है प्रभु की संगति में। तभी ये छोटी सी मंडली है, छोटी सी ग्रुप है जो प्रभु के साथ चलते हैं। वास्ट मेजोरिटी ऑफ बिलीवर्स है ना, तो प्रभु की संगति नहीं चलते, प्रभु का काम करते हैं लेकिन संगति नहीं करते। तो प्रभु एक दिन कहेंगे मैं आपको जानता नहीं, क्योंकि आप मेरे संगति में नहीं था, आप दूसरे संगति में गए। हम भी भटक सकते हैं, प्रभु में आने के बाद भी भटक सकते हैं। कई बार मैं भी भटक गया था, लेकिन प्रभु के पास प्रभु मुझे काफी डांटा। तभी प्रभु का कहा कि मैंने पाप किया, मेरे जिंदगी में गलत गलत चीजों की लालच थी। प्रभु मैं आपकी संगति में हमेशा रहना चाहता हूँ। बाकी दुनिया का जो कुछ भी है अगर नहीं मिलेगा तो चलेगा, प्रभु मेरे पास है। प्रभु हमारा संगति में होगा तो प्रभु की प्रोटेक्शन, रक्षा हमारे ऊपर रहेंगे, हमारे फैमिली के ऊपर रहेंगे। इधर शैतान की लालच से हम लोग भटकेंगे, जैसे हव्वा ने भटका तो उनका जीवन में बहुत कष्ट और दुख आ गया। तो हमको भी ये सोचना चाहिए, ये बड़ा सा लड़ाई है। हमको अपोस्टल पॉल ने कहा कि मैं तो प्रभु का अ, जो आज्ञा दिया था मैं उसको इनकार नहीं किया, मैंने तो आज्ञा मानी और चली। आई डिड नॉट प्रूव डिसोबीडिएंट टू द हेवनली विजन। तो प्रभु हमको एक स्वर्गीय विजन, स्वर्गीय आकर्षण दे रहा है हमको। तो हम प्रभु से, मैं प्रभु का हूँ। जैसे हम लोग गीत गाते हैं, यीशु के पीछे में चलने लगा ना लौटूंगा, नहीं, प्रभु के पास ही मैं रहूंगा और चलूंगा। कितने लोग भटके हुए हैं और पीछे गए हैं, लेकिन मैं प्रभु, आपने मुझे मेरा जान शैतान के खींच से निकाला है प्रभु, और मुझे वापस पाप में जाना नहीं चाहिए, वापस संसारिक लोभ में नहीं जाना है। प्रभु आई वांट टू वॉक विथ यू एंड लव यू एंड एंजॉय योर प्रेजेंस फॉर ऑल इटर्निटी। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा बात कर प्रभु से प्रार्थना करेंगे जब प्रभु हमारा संगति में हमेशा रहेंगे, और प्रभु हमको आशीष देंगे, और प्रभु की स्वर्गीय आशीष हमारे ऊपर रहेगी। तो प्रेज द लॉर्ड सिस्टर्स, सबके लिए प्रार्थना करना। इसलिए हम सिस्टर रेखा भी थोड़ा उसका पेट पे दर्द हो रही थी, इसके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु सिस्टर रेखा को आशीष दे, प्रभु उसको पूरा चंगाई दे दे प्रभु।
साथ मिलके प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके जीवन में एक सच्चा नया जोश आए प्रभु जी, और जो कुछ भी पाप किया उन्होंने, जब वो सब कबूल करके आपको बताए प्रभु जी, और आपकी स्वतंत्रता पवित्र आत्मा की संगति उनके साथ रहे, तो थैंक यू लॉर्ड। एंड बच्चों की के लिए वो एक आशीष करे है, और फैमिली के लिए, अपना हस्बैंड के लिए एक आशीष के कारण बने। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, हालेलुया, आमीन। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर्स, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।